Hello students. Now let us start with a subject that is computer science with Python of class 11. We are prescribing one book that is computer science with Python by Preeti Arora. It is a Sultan Chand publication. Please purchase it as soon as possible. Now in this subject the syllabus is being revised by the CBSE and we are having only 3 units in this book, that is unit 1, unit 2 and unit 3. The unit 1 is computer system and organization, unit number 2 is computational thinking and programming, and unit number 3 is society, law and ethics. Only these 3 units will go throughout the year. Let us start with the first unit, that is computer system and organization. Please download the syllabus from CBSE or I will provide you the PDF file of the syllabus. Please download it and if possible please take out the printout of that syllabus. Let us start with the unit number 1. In unit number 1 we have computer system and organization. In this unit we will learn about several things in this chapter. Now let us say we have the first topic is that is basic computer organization. Second topic we will learn in this chapter is description of computer system and mobile system, CPU, memory, hard disk, input output devices, battery, type of softwares and type of memory units which we use. Now students, in this only one unit we have 3 parts, that is computer system and organization has 3 parts. In the first part we will learn about all the softwares and hardwares which we use in the computer system, which you all have already learned throughout class 1 to class 10. So these are the simple things which I will cover in this chapter. The second part of this chapter unit comprises of the second chapter, that is Boolean algebra and the data representation. That is bit difficult. And the third part says about the networking and cloud computing. Now let us start with the first part of this unit, that is basic computer system organization. Now what is computer organization? What is computer organization? The answer is computer organization deals with the facts that whatever the softwares and the hardwares which we are using, they are processed nicely, or the data which we are inputting in the computer system is processed and is converted into the information. ठीक, अब सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि कंप्यूटर्स में जो भी हम लोग डेटा एंटर करते हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव अ कंप्यूटर सिस्टम, इट इज कंप्राइज ऑफ मेनी हार्डवेयर, फॉर एग्जांपल आपके सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल हैं उसके अंदर. अब मैंने क्या करना है कि डेटा मुझे एंटर करना है कंप्यूटर में, मैंने कीबोर्ड की हेल्प से डेटा एंटर किया. As soon as I will enter the data, automatically the central processing unit which is inside your computer, that is CPU, processes that data and convert that data into a meaningful information. So the data is being entered by us and the output which we get is a information. For example, अगर मुझे output चाहिए 5 कोई भी एडिशन करने पर, तो मैं 4+1 कर सकता हूँ या फिर 2+3 कर सकता हूँ. ये सुनो, तो अगर मैंने 2 एंटर किया कीबोर्ड से, फिर प्लस एंटर किया और फिर देन आई एम प्रेसिंग 3 एंड इक्वल्स टू साइन, एज सून एज आई विल प्रेस इक्वल्स टू साइन वी विल गेट 5 ऑन द डिस्प्ले यूनिट. तो ये जो 2 है, प्लस है, 3 है, इक्वल्स टू है, ये सब क्या है? दीज आर द डेटा. एज सून एज आई विल प्रेस एंटर, automatically the CPU or the arithmetic logic unit processes it और वो आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता है एज अ आउटपुट, वो 5. तो 5 इज अ इंफॉर्मेशन. तो डेटा क्या होता है? जो हम लोग रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर में, और इंफॉर्मेशन क्या होती है? जो मीनिंग सेट जस्टिफाई करे. ठीक है, तो इंफॉर्मेशन इज अ थिंग विच जस्टिफाइज एनी मीनिंग. डेटा डज नॉट हैव एनी मीनिंग. डेटा इज जस्ट अ रॉ मटेरियल विच वी input into the computer. Understood? Now there is a one diagram. For example, there is a data. As soon as we input the data, computer processes it. ठीक है, it is a processing unit. It is a input unit. Input unit आपका कीबोर्ड भी हो सकता है, स्कैनर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो भी input unit हम लोग यूज करते हैं. तो जो भी हम लोग डेटा एंटर कर रहे हैं, it processes by the computer system and we get the output, and the output which we get is a information. ठीक है, तो द डेटा
is a raw material. It is a raw material. Process, it is a working of CPU of the computer, and the output which we are getting is a information. It is a meaningful data और the information. ठीक है, तो इससे हम लोग काम करेंगे, ना कि इससे काम करने वाले हैं. ठीक, अभी जैसे मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए कंप्यूटर से, तो वो क्या होगी, एक मीनिंग करेगी, उसी के ऊपर तो हम लोग प्रोसेस करते हैं. ठीक है, तो डेटा कुछ भी रॉ मटेरियल हो जाता है, वो कंप्यूटर प्रोसेस करेगा, उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगा. द प्रोसेस व्हेन द सीपीयू प्रोसेसेस द डेटा, फॉर एग्जांपल मैंने 2 + 3 किया और इक्वल्स टू साइन करा के प्रोसेस किया, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है, वो उस पर्टिकुलर डेटा को भी सेव कर लेता है. कहाँ पर, कंप्यूटर मेमोरी में. अब कंप्यूटर मेमोरी में किस मेमोरी में कर रहे हैं, वी विल लुक इट फर्दर कि किस मेमोरी में सेव करना है. ये हमारे ऊपर होता है कि किस मेमोरी में सेव करवाना है. तो इट इज अ स्टोरेज. तो द स्टोरेज यूनिट वर्क्स एज अ इम्पॉर्टेंट यूनिट, कि जो भी आपकी डेटा है वो भी आपका स्टोरेज यूनिट के अंदर होगा, जो आपकी इंफॉर्मेशन फेच होके जा रही है वो भी आपकी स्टोरेज यूनिट के अंदर होगी. ठीक है, इट कैन बी रैम, इट कैन बी हार्ड डिस्क. ठीक है, वी विल सी इट लेटर. So what is computer organization? Computer organization is just a concept in which we learn about the data which is being processed by the computer system, and then it is converted into the information. The storage unit plays an important role कि वो automatically जो भी आप data process करवा रहे हो उसको store करेगा, और जो information आपकी fetch होके जा रही है as a output, that is also stored in the computer memory. ठीक, this is all about computer system, basic computer system. Now in basic classes, like in class 6 or 7, when we have a computer chapter number 1, basic computer system, तो we learn about many units. Yes or no? तो बहुत सारी यूनिट्स होती हैं कंप्यूटर के अंदर. सबसे पहली यूनिट होती है इनपुट यूनिट. ठीक है, नेक्स्ट यूनिट होती है आपकी आउटपुट यूनिट. देन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट आता है, दैट इज एएलयू हम लोग बोल सकते हैं. ठीक, और एक होता है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट बोल सकते हैं. ठीक, और इन दोनों को मिला के क्या बनता है, कंट्रोल यूनिट. तो वी हैव दीज मैनी यूनिट्स, और उस पर्टिकुलर यूनिट्स के अंदर बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्टेड रहती हैं. जैसे अगर मैं इनपुट यूनिट की बात करूं तो कीबोर्ड भी कनेक्टेड है, माउस भी कनेक्टेड है, स्कैनर भी कनेक्टेड है. तो बहुत सारी चीजें हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, और पूरे सारी डिवाइसेस का एक सम बोला गया, दैट इज इट इज इनपुट यूनिट. ऐसे हमारे पास आउटपुट यूनिट्स भी होते हैं. आउटपुट डिवाइसेस लाइक मॉनिटर हुआ, प्रिंटर हुआ, कोई भी डिस्प्ले हुआ, तो वो सब आउटपुट यूनिट में काम करेगा. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, द मेन प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. इसके अंदर हमारे होते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट. ठीक, और इन सब को कंट्रोल करता है हमारा कंट्रोल यूनिट. ठीक, नाउ एज सून एज द डेटा इज बीइंग इनपुटेड बाय अस एज अ यूजर, ऑटोमेटिकली इट गोज इनटू द कंट्रोल यूनिट. इट ऑटोमेटिकली गोज इनटू द कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल यूनिट फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन है 2 + 3. अब ये गया कंट्रोल यूनिट के पास. कंट्रोल यूनिट डिसाइड करेगा ये किस टाइप का ऑपरेशन है. फॉर एग्जांपल इट इज अ मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो ऑटोमेटिकली इट विल गो टू द अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल एबीसी प्लस कुछ भी होता, तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का काम नहीं होता, वो अपने आप दूसरी यूनिट से प्रोसेस करवाता. तो ऑटोमेटिकली डिसाइड्स, कंट्रोल यूनिट डिसाइड्स कि वो किस तरीके का ऑपरेशन है, तो उसको अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट पर भेजना है या फिर डायरेक्टली मेमोरी यूनिट करके आउटपुट से डिस्प्ले करवाना है. तो फॉर एग्जांपल इट इज 2 + 3, ऑटोमेटिकली इट विल गो टू द एएलयू. एएलयू प्रोसेसेस है 2 + 3 5 बना दिया उसने, और उसने डिस्प्ले करवा दिया कहाँ पर, आउटपुट यूनिट पर. आउटपुट यूनिट में हमारे पास कोई भी कनेक्टेड है डिवाइसेस, वीजीए डिवाइसेस कोई भी कनेक्टेड है, मॉनिटर हुआ, ठीक है, कोई भी प्रिंटर हुआ, अगर प्रिंट लेना है मुझे. ठीक, तो ये क्या है, एक सिस्टम है
बेसिक कंप्यूटर सिस्टम का आर्किटेक्चर है कि हमारे पास इनपुट यूनिट भी है, हमारे पास सीपीयू है, सीपीयू के अंदर हमारे पास एएलयू और कंट्रोल यूनिट का काम कर रहा है, और हमारे पास एक आउटपुट यूनिट भी है। ठीक, इसके अलावा और कोई डिवाइसेस हम लोग कनेक्ट नहीं कर सकते। जो भी हम लोग डिवाइसेस कनेक्ट करेंगे या तो वो इनपुट यूनिट की तरह काम करेगी, या फिर वो प्रोसेसिंग की तरह काम करेगी, या फिर वो आउटपुट यूनिट की तरह काम करेगी, और किसी भी डिवाइस को हम लोग कंप्यूटर के अंदर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो दिस इज concept of computer system. Now let us move to the next topic, that is CPU, that is central processing unit. What is central processing unit? Central processing unit is a brain of the computer system. ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, लाइक वी हैव ब्रेन। ब्रेन क्या करता है? हमारा जो ब्रेन करता है वो डेटा को प्रोसेस करके करता है ना। हमारा जो भी डेटा हमारे अंदर आ रहा है, जो हम भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, स्मेल कर रहे हैं, दैट इज ऑल रॉ मटेरियल, दैट इज डेटा। वो ऑटोमेटिकली नर्वस सिस्टम में जाता है। नर्वस सिस्टम क्या है? ब्रेन। वो ऑटोमेटिकली प्रोसेस करता है, वो हम लोगों को सेंस करवाता है। ठीक है, वी हैव देन द इंफॉर्मेशन, द मीनिंगफुल डेटा विच वी हैव. So automatically this central processing unit in the computer system behaves like in the same manner. Automatically the data which we are entering, which we are inputting in the computer system, automatically central processing unit उसके अंदर जाएगा, वो उसको प्रोसेस करेगा पूरा कि कैसे प्रोसेस करना है, मैथमेटिकल प्रोसेस करना है या फिर उसको रिलेशनली प्रोसेस करना है, तो ऑटोमेटिकली वो पूरा प्रोसेस करके और आपको आउटपुट जनरेट करके दे देगा। So it is a working of central processing unit. So you can write it, central processing unit is a brain of a computer system. Brain of computer system. Central processing unit is brain of computer system which is used to process data inputted by the user and is displayed on a screen as output. Understood? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? ये एक ब्रेन है कंप्यूटर सिस्टम का जो उस डेटा को प्रोसेस करता है जो हम एंटर कर रहे हैं, जो यूजर एंटर कर रहा है, इनपुट कर रहा है कंप्यूटर सिस्टम में, और वो डिस्प्ले करवाएगा स्क्रीन के ऊपर एज अ आउटपुट। तो ये पूरा काम किसका होगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का होगा। इनपुट डिवाइस को लेने के बाद वो आउटपुट डिवाइस के साथ आपको डिस्प्ले करवाएगा, वो पूरा काम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही करता है। ठीक, अब एक क्वेश्चन उठता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अपने आप काम करता है क्या? नो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अपने आप काम नहीं करता। इन कंप्यूटर नथिंग वर्क्स automatically. We as a user need to give each and individual command to the computer system to work for it. अगर मुझे A प्रिंट करना है तो मुझे A प्रिंट की कमांड देनी पड़ेगी। कंप्यूटर सिस्टम के पास अपना IQ नहीं होता है। We have to provide our knowledge to the computer system. Understood? तो कंप्यूटर सिस्टम में जो भी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट काम कर रहा है वो हमारी मर्जी से कर रहा है। We are giving the command to the computer system to work in this manner. तो वो उसी के अकॉर्डिंग ही काम करेगा, अपने अकॉर्डिंग काम नहीं करने वाला। अंडरस्टूड? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU will work according to the command given by us, given by the user. ठीक, computer system has zero IQ. Zero IQ means कोई भी काम अपने आप नहीं होगा। We as a user has to provide each and individual knowledge to the computer system. Clear?
तो what is central processing unit? Let us summarize it. Central processing unit is a unit, or it is a device, or it is a hardware connected to the computer system which takes the data from the input device and will process it and displays the data on the output device. ठीक है, CPU will work according to the command which we will give in the computer system. अगर मैंने किया 2 + 3 तो वो 5 देगा, अगर मैंने किया 2 - 3 तो वो 5 नहीं देगा, वो -1 रिटर्न करके देगा. क्यों? क्योंकि माइनस साइन हम लोग लगा रहे हैं, ना कि वो लगा रहे हैं. क्लियर? नो. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. नेक्स्ट टॉपिक इज memory. Now let us talk about memory. What is memory? Memory होती क्या है? We all as a user uses mobile devices. ठीक है, मोबाइल के अंदर एक मेमोरी होती है ना. मेमोरी है क्या? It is just a storage. It is just a storage. What type of storage and why we are using this storage? To save our information, to save our information. जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है अगर मुझे सेव करनी होगी तो वी विल यूज मेमोरी फॉर सेविंग एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन. अब इसके ऊपर आपके पास रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपके पास अगर वर्ड फाइल है तो वो सेव होगी, एक्सेल फाइल है तो वो सेव नहीं होगी. Any type of file or any type of information can be saved. Any type of file or information can be saved on the memory. चाहे we are using the memory of computer system or we are using the memory of mobile system, memory की definition same रहेगी. तो what is a memory in technically? A memory is a space given inside the device to save our information. Understood? So what is memory? Again repeating, memory is a space allocated in the computer system or in the mobile system to save our information. Clear? So write it down. Memory is a memory location, is a memory allocation in a computer system or in a mobile system to save any type of file or information. Any type of file or information. When we talk about memory, either in computer system और इन मोबाइल सिस्टम, मैं दोनों की बात कर रहा हूं तो मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा कि कंप्यूटर सिस्टम है कि मोबाइल सिस्टम है. मोबाइल सिस्टम एंड कंप्यूटर सिस्टम इज द सेम. ठीक है, तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मेमोरी, तो मेमोरी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हम लोगों ने. द फर्स्ट इज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंड इज सेकेंडरी मेमोरी. ठीक, नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ मेमोरी. द फर्स्ट इज primary memory and the second is secondary memory. Let us elaborate the topic. Memory is classified into two parts. The first is primary memory and the second is secondary memory. अब क्वेश्चन उठता है प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी है क्या? मेमोरी तो मेमोरी है, इधर वी सेव आर फाइल और एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन वो मेमोरी के अंदर ही तो जानी है. तो प्राइमरी किस बात की और सेकेंडरी किस बात की? नाउ लेट अस लुक व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी एंड व्हाट इज सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसके अंदर डेटा टेम्परेरी सेव होता है, जिसके अंदर डेटा टेम्परेरी सेव होता है. मीन्स if I want to save a word file in the computer system or in the mobile system, तो वो word file अगर मुझे सेव करना होगा तो मैं प्राइमरी मेमोरी के अंदर मैं सेव कर रहा हूँ तो वो परमानेंटली सेव नहीं हो रही. दैट इज सेविंग टेम्परेरीली. मीन्स कुछ टाइम बाद वो ऑटोमेटिकली आपको दिखना बंद हो जाएगी. ठीक, तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होगी? सेकेंडरी मेमोरी इज अ टाइप ऑफ मेमोरी इन विच वी कैन सेव
आर इंफॉर्मेशन और फाइल परमानेंटली। अगर मुझे लंबे टाइम के लिए सेव करना है वो फाइल, कभी भी यूज करना है, कैसे भी यूज करना है, लाइक हार्ड डिस्क विच वी आर यूजिंग, ठीक है, तो वो क्या हो गई आपकी सेकेंडरी मेमोरी हो गई। तो वी हैव two types of memory, one is primary memory and secondary memory. Second is secondary memory. Primary memory is a memory in which the information or the file is saved temporarily, and secondary memory is a memory in which the file or information is saved permanently. When we talk about primary memory, we have two types of memory, one is ROM and second is RAM. And when we talk about secondary memory, we have hard disk, a simple example, a hard disk. Now when we talk about ROM and RAM, ROM का भी आपने देखा होगा कि ROM किसे बोलते हैं, RAM किसे बोलते हैं. ROM is read only memory, RAM is random access memory. ठीक, read only memory and random access memory are the different things. Read only memory on which we can, this is a memory or the description of the memory which we can only read. जैसे हम लोग कंप्यूटर सिस्टम जब ऑन करते हैं तो वो पूरा डिस्क्रिप्शन जो आता है वो भी एक मेमोरी के अंदर तो सेव होगा, तभी तो आ रहा है, तो दैट इज रोम. व्हाट इज रैम? जब हम लोग काम कर रहे हैं किसी फाइल के ऊपर तो वो ऑटोमेटिकली तो ऑटो सेव होती जाती है ना, थोड़ा इंफॉर्मेशन सेव हो गई, ऑटो सेव हो गई, ऑटो सेव होती जाती है, तो वो रैम के ऊपर काम कर रहे हैं हम लोग. ठीक, जब उसको हम लोग सेव एज करते हैं तो हम लोग सेकेंडरी मेमोरी के ऊपर आ जाते हैं. क्लियर? तो सेकेंडरी मेमोरी इज अ हार्ड डिस्क. व्हेन वी वांट टू सेव द फाइल परमानेंटली इन द कंप्यूटर सिस्टम, जब हम लोग कमांड देंगे उस फाइल को कि वो सेव हो जाए, दैट वर्क्स फॉर द सेकेंडरी मेमोरी. Clear? So what we have, primary memory is being classified into two categories. One is ROM and second is RAM. ROM is read-only memory on which we can only read. We cannot write the data. RAM is read and write type of memory. ये होती है read-only. And this is read/write. Means we can read the data as well as we can write the data on the memory. ठीक? राइट द डेटा, जो हम लोग फाइल अपडेट करते जा रहे हैं वो राइट ही तो हो रही है, और रीड कोई भी फाइल आपने ओपन करी है उस समय ओपन है लेकिन वो मेमोरी के ऊपर ही तो ओपन होगी, ऐसे तो ओपन हो नहीं जाती, तो वो रैम का काम है. एंड व्हाट इज सेकेंडरी मेमोरी? अगर मुझे वो वाली फाइल परमानेंटली सेव करनी है कंप्यूटर में तो ऑटोमेटिकली वो हम सेकेंडरी मेमोरी के अंदर सेव करने वाले हैं. क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट मेमोरी. नेक्स्ट कम्स इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. सीबीएसई ने आपका सिलेबस रिवाइज कर लिया है और मे भी चांसेस हैं कि आगे भी कुछ रिवाइज हो जाए सिलेबस, तो प्लीज कीप इन माइंड जो भी आप मार्केट से बुक लें वो रिवाइज्ड सिलेबस वाली बुक्स लें. इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. व्हाट आर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस? द डिवाइस व्हिच वी यूज टू एंटर द इंफॉर्मेशन और द डेटा इज नोन एज इनपुट डिवाइस. And the device which we use to generate the output or to display the output is known as output device. Simple logic. So there are many examples of input device which we use in our daily life. Number one, keyboard. Second, mouse. Third, scanner. Fourth, any other? मार्क रीडर्स, OMR वाली जो होती हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर्स. आउटपुट डिवाइसेस क्या कौन से हो जाएंगे? नंबर वन मॉनिटर, सेकंड प्रिंटर, नेक्स्ट एनी डिस्प्ले यूनिट, एनी डिस्प्ले other than the monitor is known as output device. So basically what is input and output device? The devices which we connect to the computer system which are used to enter the information of the data is known as input devices, and the devices which we use for displaying the output is known as output device. अब कंप्यूटर सिस्टम में हम लोग क्या क्या लगाते हैं? सबसे पहले हम लोग कीबोर्ड लगाते हैं, कभी हम लोग माउस लगाते हैं, फिर हम लोग प्रिंटर लगा देते हैं, स्कैनर लगा देते हैं, फिर उसमें हम लोग ऑप्टिकल मार्क रीडर तो हम लोग यूज नहीं करते, फॉर एग्जांपल फिंगरप्रिंट स्कैनर लगा दिया. शॉप्स पे देखा होगा फिंगरप्रिंट स्कैनर भी होता है एक, ठीक है.
तो ये सारी डिवाइसेस हम लोग लगा सकते हैं ना, पेरिफेरल्स हम लोग कंप्यूटर में कनेक्ट कर सकते हैं. तो सम ऑफ द हार्डवेयर विच वी कनेक्ट वर्क फॉर इनपुट एंड सम ऑफ द हार्डवेयर विच वी कनेक्ट वर्क फॉर आउटपुट. तो दीज आर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. नेक्स्ट कम softwares. Now let us move to the next topic, the important topic, that is softwares. What are softwares? For example, कंप्यूटर में मैंने एक हार्डवेयर लगाया. फॉर एग्जाम्पल मैंने सीडी ड्राइव लगाई. अब उस सीडी ड्राइव को वर्क करने के लिए उसका एक ड्राइवर हम लोगों को इंस्टॉल करना पड़ेगा कंप्यूटर में. तो वो जो ड्राइवर हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं कंप्यूटर में, दैट इज नोन एज अ सॉफ्टवेयर. तो हर एक कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी हार्डवेयर लगे होते हैं उनको रन करने के लिए जो हमारे पास EXE फाइल होती है, दैट इज एग्जीक्यूटेबल फाइल जो हमारे पास होती है, दैट इज नोन एज software. Clear? Simple example, to run any type of hardware which is connected in the computer system, we need to use a driver or an executable file or an application to run that hardware. Accordingly, that particular application is known as a software. ठीक? सॉफ्टवेयर क्या होंगे? सॉफ्टवेयर वो एप्लीकेशन है जिसकी हेल्प से आपके हार्डवेयर रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे. अगर मुझे हार्ड डिस्क चलानी है कंप्यूटर में तो उसका एक ड्राइवर मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा. सीडी ड्राइव मुझे चलानी है तो उसका एक हार्डवेयर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी वो चलेगी. पेन होती है हमारे पास तो ऑटोमेटिकली वो उसका पहले सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो, वो इंस्टॉल हो जाता है ना. तो वो सारे क्या है? एप्लीकेशंस है, दैट इज अ सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर्स आर बीइंग क्लासिफाइड इनटू मेनी टाइप ऑफ कैटेगरीज. सबसे पहला आता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. Second is system software. Third is utility software. ठीक? Now, application system and utility software होते क्या है? For example, मैंने एक मार्केट से कंप्यूटर परचेस किया और मैंने बोला कि इसमें मुझे Windows 7 चाहिए. तो Windows 7 is a operating system, we all know. तो Windows 7 is a operating system या फिर कोई भी वर्जन आपने विंडोज का इंस्टॉल करवाया, दे आर ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम. अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल क्यों करवा रहा हूं कंप्यूटर में? माय क्वेश्चन इज दिस, व्हाई वी आस्क दैट कंप्यूटर पर्सन टू इंस्टॉल दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इन अ कंप्यूटर सिस्टम? व्हाई? बिकॉज वी नीड टू वर्क ऑन दैट प्लेटफॉर्म. वो आपको एक ग्राफिकल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं. यस और नो? So this operating system is helping user to interact with the computer. Means we are as a user is using this operating system to interact with the computer system. With the computer system. तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये इंटरमीडिएटर का काम कर रहा है. ये एक मीडिएटर का काम कर रहा है हमारे और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में. अगर मैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम को हटा दूं तो कैन यू वर्क ऑन द कंप्यूटर सिस्टम? आंसर विल बी नो. व्हाई? बिकॉज देयर इज नो मीडिएटर प्रेजेंट. कुछ ग्राफिक्स हम लोग को दिखाई नहीं देंगे, माउस कहाँ क्लिक कर रहे हैं, कीबोर्ड से क्या चीज हम लोग इनपुट कर रहे हैं, डिस्प्ले नहीं हो पा रहा, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा. तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ मेन सॉफ्टवेयर which works as a mediator between the user and the computer system. तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये किसके ऊपर काम कर रहा है? पूरे कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है. क्लियर? ये पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम किसके ऊपर काम कर रहा है? पूरे कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहा है, जिससे आपको हैंडल करना इजी हो रहा है. तो दिस ऑपरेटिंग सिस्टम comes under system software. Clear? So what is system software? System software is a software which works as a mediator between the user and the computer system. अब फॉर एग्जाम्पल मैं मोबाइल की बात करूं तो मोबाइल में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है,
Symbian ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो ये iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम आदि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो उस सिस्टम को रन करने के लिए हेल्प कर रहा है, जो उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है कि यूजर उस पर्टिकुलर डिवाइस को यूज कर सके। तो दे कम अंडर सिस्टम सॉफ्टवेयर। नाउ फॉर एग्जांपल सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके विंडोज 7 हो गई। अब मैंने शॉपकीपर से बोला कि आई नीड टू अटैच वन डिस्क, डिस्क मीन्स द सीडी ड्राइव, ठीक। मुझे उसमें एक प्रिंटर भी लगवाना है, ठीक। तो मैंने क्या किया, प्रिंटर लिया, उसको कनेक्ट किया, सीडी ड्राइव ली, उसको भी कनेक्ट की यूएसबी से। तो क्या वो सीडी ड्राइव जो है, जो मैं यूएसबी से कनेक्ट कर रहा हूँ कंप्यूटर सिस्टम में, वो एज इट इज रन हो जाएगी मेरे कनेक्ट करने के बाद? नहीं हो पाएगी ना। जो मैं प्रिंटर यूज कर रहा हूँ कंप्यूटर सिस्टम में, मैंने उसको केबल से कनेक्ट किया, क्या मैं यूज कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो लिंक ही प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है। और वो लिंक कौन प्रोवाइड करेगा? सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगा। लिंक कौन प्रोवाइड करेगा? सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगा, या फिर ड्राइवर प्रोवाइड करेगा जो उस पर्टिकुलर हार्डवेयर के साथ आपको मिल रहा है, ठीक है। तो व्हेन वी अटैच एनी टाइप ऑफ हार्डवेयर टू द कंप्यूटर सिस्टम, it asks us for the driver to install that application to run that particular hardware. तो उन पर्टिकुलर हार्डवेयर को रन करने के लिए जो भी हम लोग सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हैं, दे आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दे आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब मैं बोलूं कि जो ऑफिस है, ऑफिस अगर मैं 2010 इंस्टॉल कर रखा है या फिर 2016 इंस्टॉल कर रखा है, वो क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? नहीं, that is not application software. Application software is a type of software which is only used to run the hardwares which are attached to your computer system. Clear? So they all come under application softwares. अब मैंने फिर से वही वाला एग्जांपल ले रहा हूँ, मुझे ऑफिस भी इंस्टॉल करना है, मुझे कोरेल ड्रॉ भी इंस्टॉल करना है, मुझे फोटोशॉप भी इंस्टॉल करना है। तो दीज आर द पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर विच we are using for our use. Clear? हम अपने यूज के लिए वो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, उन सारे सॉफ्टवेयर को हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्लियर? तो व्हाट आर सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर आर द एप्लीकेशंस और द एग्जीक्यूटेबल फाइल्स व्हिच आर used, which are installed in the computer system or in the mobile system to run those hardwares. Softwares are being classified into three categories. Number one, the application softwares. Second, system software. Now what is a system software? System software is a software or it is an application which is used in the to run the device, that is computer system or the mobile device. Clear? For example, operating system. Next comes application software, the additional hardwares which are connected to the devices. If we want to run those hardwares, we need to install or we need to download and install the application for those hardwares to run them. They come under application software. And what are utility softwares? The softwares which we install for our use, like Photoshop, MS Office, etc., etc. They come under utility softwares. Clear? Now next comes memory units. हम लोग बचपन से पढ़ते हैं कि मेमोरी बिट्स में होती है, फिर बाइट में हुई, फिर किलोबाइट में हुई, फिर मेगाबाइट में आई, फिर जीबी में आई, फिर टीबी में आई, फिर पीबी में आएगी, ठीक है। तो अभी हम लोग मैक्सिमम कहाँ तक देख रहे हैं कि टेराबाइट तक हम लोग मेमोरी देख सकते हैं, ठीक है। अभी जो भी हम लोगों के हार्डवेयर प्रोवाइड हो रहे हैं, स्टोरेज यूनिट्स प्रोवाइड हो रही हैं, वो क्या हो रही है, टेराबाइट तक हम लोग ने नाम सुना हुआ है ना। तो सबसे पहला आया बिट। व्हाट इज बिट? बाइनरी डिजिट। ये मेमोरी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक। फिर आया बाइट, ठीक। 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स। 8 बिट्स को मिला के एक बाइट बन जाता है हमारे पास। फिर आया हम लोग पास किलोबाइट। किलोबाइट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय केबी। किलो मींस 10⁻³ लेकिन कंप्यूटर में बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं कि 1 बाइट 1 KB will be equals to 1024 बाइट।
1024 2 raised to the power of 10 बाइट्स, ठीक है। फिर आ गया हमारे पास मेगाबाइट। मेगाबाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय एमबी, तो 1 MB विल बी इक्वल्स टू 1024 KB। यही वाले रेशियो के साथ हम लोग यूनिट्स के साथ बढ़ते जाते हैं। देन कम्स जीबी, तो वी हैव 1 GB इज इक्वल्स टू 1024 MB। डोंट राइट 1000, it is 1024. Then comes TB, 1 TB will be equals to 1024 GB। अब टेराबाइट के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं PB, that is पैराबाइट। पैराबाइट के अंदर 1 PB will be equals to 1024 टेराबाइट, ठीक। ये मेमोरी यूनिट्स हैं, these are the memory, just go through the memory units from the book as well। पहले हम लोग बाइट्स में देखते हैं, फिर किलोबाइट्स में देखते हैं, देन वी यूज्ड टू सी इन MB, देन GB, देन TB, देन PB एंड सो ऑन। जब देयर आर मेनी यूनिट्स ऑफ द मेमोरी। तो अभी तक जो भी हम लोग की रियल लाइफ है, जो हम लोग देख पा रहे हैं, वो हम लोग ने टेराबाइट तक अभी तक देखा है। आने वाले ईयर्स में हम लोग पैराबाइट वाली मेमोरी भी देखने लगेंगे, ठीक। तो दिस इज ऑल विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट यूनिट। Unit number 1 has 3 parts. I have told you earlier. They have 3 parts. The first unit is completed. The first part is completed. Second part and third part I will do in the second video and the third video. Second part is all about data representation. Data representation, it is a most important. The first part was the basic which we are going through since our childhood. डेटा रिप्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए नया होगा। प्लीज गो थ्रू द डेटा रिप्रेजेंटेशन पार्ट, जैसे जैसे मैं बताता जाऊं वैसे वैसे करते जाइएगा एंड कीप प्रैक्टिसिंग फॉर द डेटा रिप्रेजेंटेशन थ्रू आउट द ईयर। और थर्ड पार्ट फिर से आपका थ्योरेटिकल आएगा, जिसमें हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग के थोड़े से कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। क्लियर? तो दिस इज ऑल फॉर टुडे।